Test number 4. Question number 46. Which of the following is incorrect with respect to muscle fiber of a skeletal muscle? Z line bisects the I band. ये correct है. The thick filaments are held together in the middle of the A band by a thin fibrous membrane called M line. Correct. The A and the I bands are arranged alternately throughout the length of the muscle fiber or myofibril. Correct. H zone shows overlapping of thin filaments. Wrong. H zone वो है जहाँ पे thin filaments नहीं होते हैं. ये thick filaments का बीच का zone है जहाँ thin filaments नहीं है. तो ये overlap by thin filaments नहीं है. So this statement is incorrect. तो 46 का आंसर हो गया 4. Then question number 47. Which of the following is true? The atlas moves around the odontoid peg of axis. ये correct है. इसको pivot joint कहते हैं, PIVOT. The second vertebrae called axis remains articulated to the skull by the help of occipital condyles. Wrong. Occipital condyle से articulate first vertebrae यानी axis करती है. Third, atlas and axis remains completely fused. Wrong. The first 7 pair of ribs are called false ribs. ये भी गलत है. तो हमारे पास यहाँ true statement हो गया 47. 48. Arrange the following bones according to their increasing number. Femur 1. जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है फीमर. फीमर में एक बोन है. मेटाटार्सल्स 7. मेटाटार्सल्स 5. कार्पल्स 8. फेलेंजेस 14. तो हमारा यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 वाला. देन 49. Patella is sesamoid bone. That's correct. It's cup-shaped bone covering the knee joint ventrally. It's correct. It is called kneecap. It's all correct. Also correct. So 49 का आंसर हो गया 4. All are correct. 58. Choose the incorrect statement. Fibrous joint do not show any movement. ये correct है. Synovial joints permit free movement. ये correct है. Cartilaginous joints permit limited movement. It's also correct. Synovial joints are characterized by a fluid-less synovial cavity. This is wrong. Synovial joint में fluid-filled cavity होती है जहाँ पे synovial fluid भरा होगा. So incorrect statement हो गया 4. 51. Identify the incorrect match. Malleus and stapes. These are ear ossicle. Correct. Sternum and ribs. Axial skeleton. Correct. Clavicle and glenoid cavity. Pelvic girdle से concerned है. This is wrong. ये pectoral girdle से concerned है. Humerus and ulna, appendicular skeleton, ये भी correct है. तो 51 में incorrect हमारा हो गया 3rd. Nasal granules are. These are rough endoplasmic reticulum. या ये modified form of rough endoplasmic reticulum है. These are found in neurons, both 1 and 2, और these are modified Golgi bodies. नहीं, ये हैं both 1 and 2, RER, और ये मिलते हैं neurons में. तो nasal granule के लिए आंसर हो गया 3rd. 53rd. When an axon get depolarized, then it develops. एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, जब भी कोई मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होगी, पोलराइज्ड यानी रेस्टिंग स्टेज में होगी, इट्स ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसाइड. और जब भी कोई मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है, पहला पॉइंट, डीपोलराइजेशन इज ऑलवेज बाय इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. और सोडियम के इनफ्लक्स के बाद मेम्ब्रेन अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी और नेगेटिव वो आउटसाइड रह जाएगी. सो हमसे पूछा गया डीपोलराइज्ड में, तो डीपोलराइज्ड में आंसर होगा नेगेटिव ऑन आउटसाइड एंड पॉजिटिव ऑन इनसाइड, क्योंकि ये जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाए. तो हमारे पास 53rd का आंसर हो गया 2nd. 54. हाउ मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स गिवन बिलो बिलोंग टू फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोरब्रेन के लिए लेटर डिपिक्ट किया F, मिड ब्रेन के लिए M और हाइंड ब्रेन के लिए H. पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देन थैलेमस, देन मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस,
सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड पोन्स। नाउ सी, इसमें सबसे पहले ढूंढे फोर ब्रेन वाले। फोर ब्रेन में आ जाएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, तो तीन हो गए फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में यहाँ एक ही है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन में तीन है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम एंड द पोन्स। सो आंसर हो गया फोर ब्रेन में थ्री, मिड ब्रेन से बिलोंग करता हुआ वन, हाइंड ब्रेन से बिलोंग करते हुए थ्री। सो आंसर इज 4। 55. Which of the following is incorrect? Flow of CSF is maintained by beating movement of cilia of ependymal cell. It's correct. Hunger center, its satiety center of the brain is present in hypothalamus. ये भी सही है. Cerebellum is associated with maintaining posture and body equilibrium. Cerebellum का ये purpose है, body का posture maintain करना. ये correct है. Limbic system is the major coordinating center for sensory and motor signaling. Wrong. ये स्टेटमेंट थैलेमस के लिए करेक्ट है. अगर यहाँ पे थैलेमस के लिए स्टेटमेंट होती तो ये करेक्ट हो जाती. फॉर लिम्बिक सिस्टम दिस इज नॉट करेक्ट. 56. हाउ मेनी ऑफ गिवन क्रेनियल नर्व्स आर एक्सक्लूसिवली सेंसरी एंड एक्सक्लूसिवली मोटर? जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो टोटल हैं 12 पेयर, जिसके लिए एक सेंटेंस ऐसे रखना, सम सेज money matters, but my brother says big books matter most. इस सेंटेंस में टोटल 12 वर्ड हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ नोटिस, जो वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है वो सेंसरी है, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड एट्थ. फर्स्ट सेकेंड एंड एट्थ नर्व वुड बी सेंसरी. जहां एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो मोटर है. आप देखिए, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th एंड 12th. थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11 एंड 12. उसके बाद जो बी, बी से आप लेके चलिए बोथ, यानी सेंसरी एंड मोटर बोथ, तो वो है मिक्स्ड. तो वो हमारे पास बचा 5 7 9 10. तो आपको जो 12 क्रेनियल नर्व्स अगर याद हो तो उसमें फर्स्ट सेकेंड और एट्थ हो जाएगी सेंसरी, थर्ड फोर्थ सिक्स 11 12 होगी मोटर, 7 9 10 हो जाएगी मिक्स्ड. तो आपके क्वेश्चन में है कुछ गिवन नर्व्स हैं, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, ट्रॉक्लियर, ऑप्टिक. हम 12 की 12 क्रेनियल नर्व को लेके एक वर्ड फ्रेम करते हैं, उपटा फेगवा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं इनमें आप बड़े आराम से प्लेस कर सकते हो कौन सेंसरी और कौन सी मोटर है. तो आपको इस गिवन में फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, ट्रॉक्लियर और ऑल्फैक्टरी में देखिए. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल. अब आप यहाँ से आराम से इसको ढूंढ पाएंगे. तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे दो नर्व सेंसरी है और एक मोटर है. एक्सक्लूसिवली सेंसरी और एक्सक्लूसिवली मोटर पूछा गया. तो 56 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. देन 57, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर cerebrospinal fluid. It is secreted by midbrain. Wrong. It is secreted by choroid plexus, जो मेनली लोकेटेड होते हैं फोर ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में. तो यही हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन. ये करेक्ट है. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स थ्रू ब्रेन. करेक्ट. इट इज फिल्ड इन वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड कुशन्स द ब्रेन. ये करेक्ट है. ये ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करने का काम करता है. CSF ऑन एन एवरेज
ब्रॉड रेंज लें तो CSF की 80 से 150 ml इसका वॉल्यूम माना जाता है। एक रेंज वाइज इसको 120 टू 150 ml आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। ये इसकी एक वैल्यू मानी जाती है। अराउंड 500 ml पर डे ये प्रोड्यूस होता है। ऑन एन एवरेज 120 से 150 ब्रॉड रेंज लोगे तो 80 से 150 ml इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है, विच इज सिक्रेटेड बाय एपेंडाइमल सेल। कोरोइड प्लेक्सस में जो एपेंडाइमल सेल्स हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं, ये ब्रेन में फ्लो करता है। सम टाइम इट्स ओवरफ्लो और वी कैन से स्पीडी फ्लो लीड्स टू पल्सेटिंग हेड। कभी कभी हेड में कुछ पल्सेस की अजीब सा सिरदर्द फील होता है, कुछ पल्सेटिंग फील होता है, हो सकता है ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ CSF। सो हम एक सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं कि दैट ओवरफ्लो ऑफ CSF कैन लीड टू पल्सेटिंग हेड। तो फिलहाल हम जो क्वेश्चन 57 डिस्कस कर रहे थे उसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और CSF मिड ब्रेन से सिक्रीट नहीं होता। क्वेश्चन 58, एट द कॉक्लियर बेस कुछ हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। इन ब्लैंक्स में जो सूट करता है, मैं डायरेक्ट उस ऑप्शन पे आ रहा हूँ थर्ड में। स्केला वेस्टिबुलाई के बेस पे ओवल विंडो हो जाएगा, स्केला टिम्पैनी के बेस पे राउंड विंडो हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ को कंफ्यूजन आता है, थोड़ा रफली ऐसे समझना। लीजिए मैं कहता हूँ ये कॉक्लियर डक्ट है, मैंने स्ट्रेट दिखाया जबकि कॉइल डक्ट है, जिसके अंदर मान के चलो ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है, ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये टिम्पैनी है। आप जानते हो यहाँ के बाद यहाँ मिडल ईयर होगा, ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। इट्स अ वेरी रफ डायग्राम, जस्ट कि आपको बात समझ में आ पाए। मान लीजिए ये कॉक्लिया है, तो कॉक्लिया का ये साइड बेस लिखा जाता है और ये उसका एपेक्स लिखा है। अगर ये बेस है तो स्केला वेस्टिबुलाई के बेस पे जो विंडो है वो ओवल है, स्केला टिम्पैनी के बेस पे जो विंडो है वो राउंड है। तो यही आपको स्टेटमेंट में गिवन है, यानी आपके पास 58 का आंसर हो जाएगा थर्ड। देन 59, बॉमन सेल्स आर प्रेजेंट इन इट्स इन नेजल एपिथेलियम। बॉमन सेल के सिक्रीशन में केमिकल्स डिसॉल्व होते हैं और वहां पे प्रेजेंट कीमो रिसेप्टर सेल उनको स्मेल के लिए सेंस करती है, ऑल्फैक्शन के लिए सेंस करती है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर बॉमन सेल्स को किडनी आंसर मार्क करते हैं, वो बॉमन कैप्सूल है, वो बॉमन सेल नहीं। 60th, टेस्ट एंड स्मेल आर सिमिलर इन दैट। 60th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन बोथ केसेस केमिकल गेट डिसॉल्व्ड इन द बॉडी फ्लूइड बिफोर दे कैन बी डिटेक्टेड। टेस्ट का केमिकल हो या स्मेल का केमिकल हो, पहले वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगा, फिर कीमो रिसेप्टर सेल उसे रिसीव करें। कीमो रिसेप्टर सेल्स अगर उसको टेस्ट के लिए सेंस कर रही हैं तो उनका नाम हो जाएगा गस्टैटो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर सेल अगर उनको स्मेल के लिए रिसीव कर रही हैं तो नाम हो जाएगा ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। तो 60th का आंसर हो गया 1। 61, नंबर ऑफ कार्पल्स इन ईच रिस्ट 8, आंसर 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर ईयर। Sorry, choose the incorrect statement with respect to inner ear. The vestibular apparatus is composed of semicircular canal and cochlea. Vestibular apparatus में cochlea include नहीं होता, तो ये statement गलत हो गई। Autolytic organ consists of saccule and utricle, ये correct है। Each semicircular canal lies in different plane at right angle to each other, ये correct है। 3 semicircular canal होती हैं और तीनों एक दूसरे के perpendicular होती हैं। The base of semicircular canal is swollen and is called ampulla, which contains crista ampullaris. This is also correct. तो यहाँ पे 62nd का फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। Sound wave arriving at a listener first strike. It strike to tympanic membrane. 64, टिटैनी is टिटैनी एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है फाइबर का और ये अक्सर हो जाता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी प्लाज्मा में, बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम कम हो जाता है दैट कैन लीड टू टिटैनी।
थोड़ा सा हिंट के तौर पे आप समझना, ये मान लीजिए एक्सॉन है, बॉडी फ्लूइड में बाहर कैल्शियम कम है, कैल्शियम का सोडियम चैनल्स पे स्लाइट इनहिबिटरी रोल होता है। अगर कैल्शियम ECF में कम है तो जो सोडियम चैनल एक्सॉन मेम्ब्रेन में है वो स्पॉन्टेनियसली ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। एंड यू नो सोडियम का इन्फ्लक्स डीपोलराइजेशन करेगा, डीपोलराइजेशन वेव ऑफ इंपल्स क्रिएट करेगा, जो किसी मसल फाइबर से अटैच, नर्व फाइबर से अगर स्टार्ट हुई तो मसल फाइबर को स्टिमुलस मिलेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी रीजन, क्योंकि क्या कम हुआ है, कैल्शियम कम, कैल्शियम का सोडियम चैनल पे इनहिबिटरी रोल था। अगर कैल्शियम कम हुआ तो सोडियम चैनल अपने आप खुलेंगे, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रन करेगा, मसल फाइबर को मैसेज जाएगा, अननेसेसरी मसल फाइबर बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड दैट कैन लीड टू व्हाट, टिटेनियम। अगर कैल्शियम अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में यहाँ अवेलेबल है तो वो सोडियम के ऊपर एक इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा, तो एक गिवन स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में सोडियम चैनल अब खुलेंगे, ना कि स्पॉन्टेनियसली बिना किसी स्टिमुलस के अपने आप। अगर बिना स्टिमुलस के अपने आप बार बार खुलेंगे तो बार बार मैसेज जाने की वजह से टिटेनी आ सकती है। तो एक छोटा सा स्लाइड कंसेप्ट ये है कि कैल्शियम, नटशेल में आप समझना कि कैल्शियम का सोडियम चैनल पे इनहिबिटरी रोल है। अगर कैल्शियम का अमाउंट हम सोडियम चैनल के आसपास बढ़ा दें तो सोडियम चैनल्स पे इनहिबिटरी इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो उस केस में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देना होगा सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए। तो सिंपल टर्म समझना, अगर कैल्शियम हायर साइड पे आ रहे हैं तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो सोडियम चैनल के ऊपर इनहिबिटरी रोल भी कम हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और कम हो जाएगा। यानी कम से कम स्टिमुलस में भी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन चल सकता है, और इतना भी कि कभी कभी सोडियम चैनल अपने आप खुलने स्टार्ट हो जाए, जो टिटेनी का कॉज बनता है। तो नटशेल आंसर, मोर कैल्शियम मोर इनहिबिशन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हाई, लेस कैल्शियम लेस इनहिबिशन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विल बी लेस। सो फिलहाल हमारा 64 का जो आंसर है वो है थर्ड। 65, a chemical signal that has both endocrine and neural role, it's epinephrine यानी adrenaline। 66, the third, sixth and 11th cranial nerve, अभी आपको पीछे बताया था, पूरा एक सेंटेंस समझाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ ऑक्यूलोमोटर इट्स थर्ड, एब्ड्यूसेंस इट्स सिक्स्थ एंड एक्सेसरी स्पाइनल इट्स 11th। 67, all hormones are lipid soluble molecule, are produced in large amounts, elicit the same response and are protein molecule, are carried to target cell via blood। That's correct। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन है और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन पूरी बॉडी में वाया ब्लड मूव करते हैं। अब पहली स्टेटमेंट देखो, सब लिपिड है, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन लार्ज अमाउंट में नहीं, ट्रेस अमाउंट, माइक्रो अमाउंट में रिलीज होते हैं, और हार्मोन के लिए एक प्रॉपर सेंटेंस आता है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, जो लेसर अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो हार्मोन एंडोक्राइन सिक्रीशन होने की वजह से ब्लड से मूव करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 68, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड, it is synthesized by hypothalamus and transported axonally to neurohypophysis। हाइपोथैलेमस में बनते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोबो पिट्यूटरी में जाके ये स्टोर हो जाते हैं, वहां से ये ब्लड में रिलीज होते हैं। तो 68 आंसर 4। 69, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ bony cavity in the sphenoid bone, it's called sella turcica। स्फिनॉइड बोन में जो डिप्रेशन है सेला टर्सिका, वहां पे पिट्यूटरी लोकेटेड। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी फॉर द टेबल प्रोवाइडेड। ए शुड बी ACTH जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करेगा, प्रोलैक्टिन का इफेक्ट होगा मेमोरी ग्लैंड्स पे, तो बी इज मेमोरी ग्लैंड। मेल गोनैड्स पे वर्क करेगा ICSH, और ऑक्सीटोसिन के आगे फिर आएगा यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, तो ऑक्सीटोसिन मिल्क का लेट डाउन कराता है,
यानी मिल्क को रिलीज आउट कराने में हेल्प करता है ग्लैंड से बाहर, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा के बर्थ कराने में हेल्प करता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एंड बर्थ हार्मोन। तो 70th का यहाँ जो ऑप्शन हमारा बेस्ट आएगा वो है सेकंड। देन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एल्डोस्टेरॉन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रॉन्ग। एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दिस इज रॉन्ग। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट gluconeogenesis but not the lipolysis and proteolysis. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को बढ़ाते हैं। लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस बढ़ा के वो फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को अवेलेबल कराएंगे ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस कराई जा सके। तो इसलिए लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट नहीं करेंगे, उसे भी प्रमोट करेंगे। तो थर्ड में इसलिए ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मेंशन आया है कि ये लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस नहीं कराती, जबकि ये कराती। फोर्थ है glucocorticoids inhibit cellular uptake and utilization of amino acids, it's correct. Then question 72, which of the following endocrine gland have dual origin? यहाँ पे दो आंसर हैं, एक एड्रिनल ग्लैंड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2। यहाँ पिट्यूटरी के लिए मोस्ट स्पेशल सेंटेंस जो आपको नोट करना है वो ये, अगर आप जर्म लेयर वाइज बात करोगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो पिट्यूटरी एक्टोडर्म से ही बनती है। बट इसको डुअल ऑरिजिन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग एक्टोडर्म से बनती है। तो आप नोट करेंगे पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस बनता है ऑरल एक्टोडर्म से, और पिट्यूटरी का न्यूरो हाइपोफाइसिस बनता है न्यूरल एक्टोडर्म से। तो जब भी डुअल ऑरिजिन, एक सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आया कि डुअल ऑरिजिन बताओ, तो आप यहाँ पिट्यूटरी को डुअल ऑरिजिन में लेके जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस बना है ऑरल एक्टोडर्म से, और न्यूरो हाइपोफाइसिस बना है न्यूरल एक्टोडर्म से। और जहां तक बात एड्रीनल ग्लैंड की है, उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म से बनता है और एड्रीनल मेड्यूला एक्टोडर्म से बनता है। तो 72 का आंसर हो गया 4। 73, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाइपरथायरॉयडिज्म कॉजेज क्रिटिनिज्म, इट्स फॉल्स क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म से क्रिटिनिज्म होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, ये करेक्ट है। इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म may cause menstrual cycle to become irregular, ये करेक्ट है क्योंकि थायराइड ग्लैंड का रोल कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन अकर ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट कुड बी। थायराइड ग्लैंड का अगर कैंसर हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, सिक्रीशंस बढ़ेगा, दैट कैन लीड टू व्हाट, हाइपरथायरॉयडिज्म। सो 73rd का आंसर हो गया 1, जिसमें एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वन। 74, if a person loses a large amount of water in short period of time, he or she may die from dehydration. ADH can help reduce water loss through its interaction with its target cell in। ADH किडनी पे एक्ट करता है और वहां से वो पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा ताकि बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। ADH का वर्किंग एक्शन साइट हो जाएगी किडनी। 75, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूरल टिश्यू इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, रॉन्ग। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल होता है। न्यूरल टिश्यू मीजोडर्मल, अगेन रॉन्ग क्योंकि न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल होता है। नर्व फाइबर्स इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और फोर्थ है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट्स करेक्ट। 75th आंसर 4। 76, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। LH and FSH stimulate gonadal activity, ये करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, ये भी करेक्ट है। वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली ऑन यूरेटर, दिस इज रॉन्ग, यूरेटर पे एक्ट नहीं करता। प्रोलैक्टिन इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, ये करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगी थर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ इमरजेंसी हार्मोन। गिवन ऑप्शंस हैं, इंक्रीजेस अलर्टनेस, ये अलर्टनेस बढ़ाता है।
प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं, ये प्यूपिलरी डायलेशन करता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। पिलोरेक्शन, हाँ ये खड़ा, ये पिलोरेक्शन में यानी रोंगटे खड़े करने वाली बात अगर आप बोलो, ये वर्क करता है। स्वेटिंग, इट इंड्यूसेस स्वेटिंग, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट। और ग्लाइकोजेनेसिस रॉन्ग, इट इंड्यूसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को अवेलेबल कराना इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन का काम है ग्लाइकोजेनेसिस में। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं, प्यूपिलरी डायलेशन इसका काम है। तो यहाँ पे बी और एफ इसके फंक्शन में नहीं आते, तो फंक्शन में आ गए ए सी डी ई, यानी आंसर इज 4। देन क्वेश्चन 78, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन बर्थ हार्मोन, दिस इज रॉन्ग, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। ग्लूकागॉन ग्लूकोज ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा के ग्लूकोज अवेलेबल कराता है, इसलिए उसे हाइपर ग्लाइसेमिक कहा जाता है। एड्रेनालिन फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन माना जाता है, इसको 3F हार्मोन कहते हैं। और पैराथॉर्मोन हाइपर कैल्सिमिक, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट मैच हो गया हमारा सेकंड। 79, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, बोथ 1 and 2। सो यहाँ पे आया ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑल्दो यहाँ पे आपको सारे ही आंसर करेक्ट मिल सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन 1 and 2 कंबाइन की आ रही है, तो आप इसको बेटर आंसर लेके चलोगे 1 and 2। देन 80th, रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज process of response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily। दिस इज करेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। सेकेंड ऑप्शन में स्टेटमेंट में बाद में वॉलेंट्री है, ये वर्ड गलत हो गया है। प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स, थर्ड स्टेटमेंट, प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू CNS सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉलेंट्रीली। और फोर्थ, प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर वॉलेंट्रीली। जो रिफ्लेक्सेस हैं वो दो टाइप के हैं, स्पाइनल भी क्रेनियल भी। प्राइमरीली हम उनको स्पाइनल कहते हैं, जो स्पाइनल नर्व से रेगुलेट होते हैं, और फिर कुछ क्रेनियल नर्व से, यानी अल्टीमेटली रेगुलेट ये किससे हो रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहे हैं, और वो भी इनवॉलेंट्रीली रेगुलेट होते हैं। तो 80th का आंसर हो जाएगा 1। द लेयर ऑफ आई बॉल विच कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। जो कोरॉइड है हमारी आई का, वो ब्लू ब्लैक इन कलर होता है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया थर्ड। 82, an area in the cerebrum of the brain which is the seat for perception of sensations like pain, touch, temperature. This area is located in parietal lobe. 83rd, which one occurs in mesencephalon? It's inferior colliculi. मिड ब्रेन यानी mesencephalon मिड ब्रेन में होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें 4 लोब हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो ये पार्ट हो गया मिड ब्रेन। 84, energy transformation during nerve conduction is it's chemical to electrical। कोई भी स्टिमुलस एक नर्व फाइबर में जब आएगा तो साइनैप्स टू साइनैप्स अक्सर वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से पास होगा, उसके बाद फिर से वो एक्सॉन में एक करंट के तौर पे पास होगा, तो यहाँ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो इन गिवन ऑप्शन में बेस्ट आंसर हमारे पास हो गया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। 80, ventricles of brain are lined by the cells called its ependymal cell, जो सिलिएटेड सेल्स है और उनकी बीटिंग मूवमेंट CSF के फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 86, suppose a person wears convex lens for proper vision। convex lens का मतलब person is suffering from hypermetropia। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे बनती है, तो उसको रेटिना के आगे लाना है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, यानी रेटिना पे लाना है रादर, तो उसमें यूज होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो फिलहाल हमारा इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन है, सपोज अ पर्सन वियर्स कॉन्वेक्स लेंस फॉर द प्रॉपर विजन, वेयर इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म इन हिज आईज व्हेन ही इज नॉट यूजिंग लेंस।
जब वो लेंस यूज नहीं कर रहा है, वो हाइपरमेट्रोपिया का पर्सन है, पेशेंट है, तो उसकी इमेज रेटिना के बिहाइंड जाए। तो आंसर थर्ड। 87, फेनेस्ट्रा रोटुंडस कनेक्ट्स मिडल ईयर टू इंटरनल ईयर। पीछे हमने एक बात की थी राउंड विंडो की। राउंड विंडो जो स्केला टिम्पैनी की है वो आके ओपन होती है मिडल ईयर, उसी को फेनेस्ट्रा रोटुंडस कहते हैं। 88, द आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना with humerus at the elbow is an example of, it's an example of hinge joint. 89, glycogen is degraded to lactic acid by enzymes in muscles when the animal is, जब एनिमल ओवरवर्क करता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड पर्सन एग्जॉस्टेड फील करता है। लास्ट क्वेश्चन 90th, मसल एक्टिविटी, it increases body temperature, decreases BMR, decreases venous return, reduces blood flow and lymph. जब भी मसल एक्टिविटी होगी तो बॉडी का बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो स्पीडी होगा और बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, बीएमआर बढ़ना, है सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में एक ही सूट करता है, इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। तो 90th का आंसर हो गया